So question you all have. I am just going to read the question out. Just pay attention. Find the magnetic induction due to a bar magnet of magnetic moment. Magnetic moment chota m is given as 0.5 ampere meter square. Correct. उसके बाद at a point on the axis 17 centimeter from the nearest pole, the magnetic length of the magnet is 6 centimeter. So we said from the center the distance r is 17 plus 3, that is equals to 20 centimeter. याद है सब लोग को इतना? Yes, everyone remember? Very nice. So it is 20 into 10 was given to us. Fine. And the value of L which we have is equals to 3 centimeter. That is 3 into 10 to the power minus 2 meter. Correct? L magnetic length was the total length, that is 12. L is 3 centimeter. Now we have to solve this. Our basic formula was D is equals to mu naught upon 4 pi into 2mr upon r square minus L square the whole square. Everyone with this formula? Yes, 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 yes. Everyone. Very nice. Now pay attention. What is the value of mu naught upon 4 pi? Mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7 into 2 into the value of m is 0.5 into the value of r is 20 into 10 to the power minus 2 upon r square, that is 20 into 10 to the power minus 2 का square minus 3 into 10 to the power minus 2 का square और इसका whole square है ना? Correct. Now I know 0.5 into 2 is 1. 0.5 into 2 is 1. तो simply 1 हो गया ना, वो cancel कर दिया मैंने. ठीक है, I will get that is 20 into minus 7 minus 2 will be equal to minus 9. So 20 into 10 to the power minus 9 upon. Now I have to solve this. If I have to solve this, let me shift the decimal. That will be much better for me. So it will be 20 into 10 to the power minus 2. So 20 upon 100, correct? 10 to the power minus 2 is 20 by 100. So 0 cancel. So it is 0.2 ka square minus this is 0.03 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर. करेक्ट? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर. एवरीवन विथ मी? इधर तक है सब लोग? वेरी नाइस. अभी 0.2 का स्क्वायर लेना है तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर लेता हूँ. 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है ना, और उसमें 2 डेसिमल में शिफ्ट कर देता हूँ. सो इट विल बी 0.04. समझा क्या कर रहा हूं मैं? एवरीवन है ना? तो 0.04. अगर डेसिमल में आपको स्क्वायर लेना नहीं आता है तो आपके लिए दूसरा टेक्निक है, इसको अपॉन 10 करो, फिर इसका स्क्वायर ले लो, इसको भी अपॉन 100 करोगे, इसका स्क्वायर लोगे, तो ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट. सो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड इट विल बी 1 2 3 4 है ना? यही होगा ना? चलो वेरी नाइस. सो इट विल बी, शुड आई इरेज दिस? चलेगा ना? ऊपर का डेटा मैं इरेज करता हूं, मैं आपको बस कैलकुलेशन करके दिखाता हूं. सो इट विल बी इक्वल टू 0.04 माइनस 0.0009 है ना? 4 जीरो शिफ्ट होंगे, 0.0009. एवरीवन वेरी नाइस. तो डिनोमिनेटर में इन दोनों को सबट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर लेना है हम लोग को. ठीक है, अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर लेना है, सो आई एम गोना से दैट इज 0.04 माइनस 0.0009. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है ना? इतना तो सबट्रैक्शन आता है. तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 10 का 9, ये हो जाएगा 1 9 3 0.0391. करेक्ट? everyone with this very nice. So इरेज कर देता हूं. हाँ, यहाँ पे क्या था? -9 था. करेक्ट. सो इट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन इसका 0.0391 का स्क्वायर. इतना तक डिड्यूस कर दिया हम लोग ने. यस. करेक्ट. वेरी नाइस. Now, do I have to take square of the entire thing? It is 0.039. Let me write it as 20 into 10 to the power -9 upon 0.04. Will do? 0.039 है ना, तो 0.04 लिख दिया मैंने 39 की जगह, है ना? तो अभी इसको मैं 2 बार लिख देता हूं. मेरे को मिलेगा 20 into 10 to the power -9
अपॉन 0.04 इंटू 0.04, करेक्ट है ना। अभी अगर इसको मैं डेसिमल निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू शंबर, करेक्ट, यस, अपॉन 4 इंटू 4. So I'll be left with 2 tens are 20, 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 fives are 10, 2 twos are 4, 2 fifties are, 2 ones are 2, 2 25s are. Correct? I'm left with -9 plus 2 will be equal to -7. है ना? -9 plus 2 will be equal to -7. 25 into 5 बताओ कितना होता है? 125. कितना? 125. 125 into 10 to the power -7. Everyone? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? That is 1.25 into 10 to the power -5 Tesla. आया? मेरे पास उधर आंसर है 1.3, तो उन्होंने क्या किया 1.25 को राउंड ऑफ करते हैं ना 5 उसके ऊपर जाता है तो 1.3 कर दिया. समझा समझा समझा. देखो कहां गलती की आप लोग ने. डन 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 डन. बढ़े हम लोग आगे. चलो, let us proceed now and let us start with the first sum of the day. Now, the next question which I'm going to give you will be हाँ, चलो क्वेश्चन मेरे साथ लिखो. A bar magnet has pole strength. A bar magnet has pole strength of 10 ampere meter and a magnetic length of 8 centimeter. Full stop. Find the value of magnetic moment and magnetic induction at equidistant point of 16 centimeter from either of its two poles. Full stop. लिखा क्वेश्चन, लिखा क्वेश्चन, लिखा क्वेश्चन. Everyone with me? Yes. चलो ध्यान दो. Everyone pay attention. The question is, now stop writing, just pay attention. A bar magnet has a pole strength of 10 ampere meter. If a bar magnet has a pole strength is denoted by chota qm, which is given as 10 ampere meter. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? Okay. Now, and a magnetic length of 8 centimeter. Magnetic length मतलब 12, which is given as 8 centimeter. That is 8 into 10 to the power -2 meter. Correct? Don't write anything now. Just pay attention. So we'll be getting, find the value of magnetic moment. If we are told to find the value of magnetic moment, मतलब छोटा m का value हमको find करना है. छोटा m का value find करना है. छोटा m is qm into 2l. QM is given as 10, 2L is given as 8 into 10 to the power -2, which is equals to 8 into 10 to the power -1, which is equals to 0.8 meter. Yes or no?
समझा कैलकुलेशन, वेरी नाइस। इसके बाद 0.8, सॉरी ये निकाला है ना, मीटर कैसे, एम्पियर मीटर स्क्वायर ना, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। एक बार इतना निकाल दिया, उसके बाद बोल रहा है and magnetic induction at an equidistant point. Now here they have not specified whether it is a question of equator, whether it is a question of axis, or whether it is a question of an arbitrary point. They have simply tricked us and they have said equidistant point. अभी दोनों पोल्स से पॉइंट इक्विडिस्टेंट कौन से कंडीशन में रहता है, एक्सिस, इक्वेटर की रैंडम पॉइंट? इक्वेटर। इक्वेटर है ना, इक्वेटर में इक्विडिस्टेंट रहता है। मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्टली कि ये इक्वेटर वाला क्वेश्चन है। उनने क्या किया, आप लोगों का कंसेप्ट चेक किया कि आप लोगों को पता है कि नहीं कि इक्वेटर पे इक्विडिस्टेंट रहता है। मतलब इन शॉर्ट दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द इक्वेटर, दैट इज BEQ। इतना समझा? यस। बट इधर कहीं पे भी हम लोग को शॉर्ट मैग्नेट बोला है क्या? नहीं बोला है ना। नहीं बोला है तो यू आर गोइंग टू यूज द ओरिजिनल फॉर्मूला, यस और नो? If you are going to use the original formula, what is the original formula of BEQ, which is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r square plus l square raised to 3 by 2? Yes or no, everyone? Correct ना? ये वाला चीज है, r square plus l square raised to 3 by 2. What is the value of r which is given to you? What is the value of r? 16 centimeter बोला है, point is at 16 centimeter from the pole, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे लेते थे ना, ये ऐसा है तो ये पॉइंट ऐसा डिस्टेंस होता था, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग का आर होता था ना। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इंडक्शन एट इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स टू पोल। सॉरी, आर इज नॉट 16, पोल से डिस्टेंस 16 दिया है ना, पोल से डिस्टेंस 16 दिया है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पोल से डिस्टेंस अगर 16 दिया है, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा? 4 centimeter. 4 centimeter, 4, right? 4, everyone with 4? This is 16 centimeter, this is 4 centimeter. Can you find this distance? ये डिस्टेंस आर है ना आप लोग का, पाइथागोरस थ्योरम, एवरीवन, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला करके आपको आर का वैल्यू मिलेगा, उसको आप सेंटीमीटर से मीटर में करोगे। एक बार सेंटीमीटर से मीटर में कर दिया तो आर का वैल्यू डाल दिया, एल का वैल्यू तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर, उसको सॉल्व करोगे और आपको उसका आंसर मिलेगा। कर पाओगे? यस 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 यस। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं होमवर्क में करोगे आप? सर 4 सेंटीमीटर कैसे है? बेटा मैग्नेटिक लेंथ 8 सेंटीमीटर है ना टोटल, तो आधा 4 हाँ सर। है ना। सो लीव वन पेज, if you want you can write the given data. This is for homework, we are going to discuss this in the next lecture because such type of sum is taught by me. लिखा सबने? Yes, everyone. Now let me tell you where you are going to come and get stuck. कहाँ पे आके आप लोग अटकने वाले हो अपने होमवर्क करते हुए, वो रहेगा कि सर रेज टू 3/2 हम कैसे सॉल्व करें, करेक्ट। For example, it is a plus b raised to 3/2. You know you are going to add this and you are going to get some answer. It is raised to 3/2. So your doubt will be how we are going to solve raised to 3/2. So raised to 3 into 1/2 it is. So जो 1.2 है उसको मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूं, है ना, और क्यूब।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, इफ द थिंग कम्स लाइक 16 रेज टू 3/2, है ना? सो 1/2 इज स्क्वायर रूट, इतना सब लोग एग्री करते हैं, 1/2 इज स्क्वायर रूट. सो आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेज टू 3, इतना समझा, है ना? तो वो आ जाएगा 4 रेज टू 3. तो अभी इजी हो गया आपके लिए. गॉट इट? सो दिस इज द मैनर यू आर गोइंग टू सॉल्व रेज टू 3/2. फाइन. तो चलो, ये वाला हिंट दे दिया, ये वाला एक पेज छोड़ दोगे आप लोग और इसको करोगे एज अ होमवर्क. अभी दूसरा चीज, आप लोग बोलोगे सर हमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, है ना? मतलब हैव यू ऑल लर्न लॉग टेबल? लॉग टेबल सीखा है? लॉग टेबल सीखा है ना? करेक्ट. तो अभी वो काम नहीं आएगा, ध्यान दो. लॉग टेबल में आप लोग बोलते हो कि यू ऑल से दैट वी डू कैलकुलेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल, बट इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आई नेवर यूज लॉग टेबल. करेक्ट, मैं पहले भी बोला था, आई नेवर यूज लॉग टेबल. हमने जितना भी कैलकुलेशन किया सब कुछ मेंटल कैलकुलेशन किया है, खुद से सारे का सारा मल्टीप्लाई डिवाइड जो किया है वो सब किया. बट यू विल कम टू अ पॉइंट कि लॉग टेबल में एक और प्रोविजन रहता है कि स्क्वायर रूट निकालना है ना? बट अभी हम लोग बोलेंगे सर हाउ डायरेक्टली आई एम गोइंग टू गेट द स्क्वायर रूट. For example, if you are going to say square root of 16, then I can easily find that is 4. But what if I'm left with square root of 41? ऐसा हो सकता है ना कि मेरे पास कोई भी एक वैल्यू आ गया 41 कि सर अभी 41 का स्क्वायर रूट क्या है. ओके एवरीवन पे अटेंशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आई एम टीचिंग यू, हाउ टू सॉल्व द थिंग्स डायरेक्टली. क्योंकि हम लोग फिजिक्स में अभी सब कुछ ऐसा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज लॉग टेबल बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में लॉग टेबल इज नॉट अलाउड. तो मेरे को स्टार्टिंग से आपको लॉग टेबल का आदत नहीं डालना है. ओके तो अभी आप लोग खुद से मेंटल कैलकुलेशन करते रहोगे. सो यू विल गेट एन आइडिया आफ्टर सॉल्विंग सम ऑफ द चैप्टर्स और सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर. यू विल बी थरो विद द कैलकुलेशन. तो आप लोग मेरे जितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे. फाइन. अभी बोला स्क्वायर रूट ऑफ 41. अभी मैं आई एम गोइंग टू से आई डोंट नो द स्क्वायर रूट ऑफ 41. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सी द लिमिट्स. मुझे इसके नीचे से नीचे किसका स्क्वायर रूट मालूम है? 36. हाँ कि नहीं? मुझे इससे नीचे से नीचे 36 का मालूम है. क्लोजेस्ट वैल्यू जो लोअर वैल्यू है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36. जो अपर वैल्यू है मुझे स्क्वायर रूट 49 का मालूम है. हाँ कि नहीं? इतना क्लियर? 36 का स्क्वायर रूट कितना है मुझे पता है 6. 49 का स्क्वायर रूट कितना है मुझे पता है 7. यस सो नो? मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ 41 विल बी समवेयर बिटवीन 6 एंड 7. इतना एग्री करते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 41 विल बी समवेयर बिटवीन 6 एंड 7. इतना तो हम लोग दिमाग लगा सकते हैं. इफ इट विल बी समवेयर बिटवीन 6 एंड 7, अभी मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं. 36 से कितना दूर है? 37, 38, 39, 40, 41. 5 की दूरी पे है ना? अभी 49 से कितना दूर है? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 8 की दूरी पे. करेक्ट. अगर एग्जैक्ट सेंटर होता ना, टैली होता ना, एग्जैक्ट सेंटर में होता कोई वैल्यू, तो मैं इसका वैल्यू क्या बोल देता? स्क्वायर रूट 6.5. अगर एग्जैक्ट सेंटर में होता तो मैं बोल देता 6.5. लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, 6 के ज्यादा पास है और 7 से थोड़ा दूर है. क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 से सिर्फ 5 की डिस्टेंस पे है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 से 8 की डिस्टेंस पे. मतलब ये वैल्यू 6 के थोड़ा पास आएगा, है ना? ये वैल्यू 6 के थोड़ा पास आएगा. राइट, अप्रोक्सीमेटली 6.3 और 6.4. समझा? यस और नो? यस और नो? समझा इतना? लेट अस Yes, टेक वन sir. मोर एग्जांपल. Yes. चलो अभी मेरे को कोई भी वैल्यू बताएगा. श्रेयस वैल्यू बताओ, कुछ भी वैल्यू बोलो जो मन में आया. 4128. कितना? 4128, है ना? चलो इसका स्क्वायर रूट निकालना है. अभी बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 4128 हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू फाइंड. अभी बोलेंगे इतना बड़ा डिजिट है तो मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा. कैसे? मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 41.28 इंटू 10 टू द पावर 2. समझा? स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट कर लिया और उधर ही मैंने 10 टू द पावर 2 दे दिया. अभी पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना? तो अगर 10 टू द पावर 2 को मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 1. यस और नो? यस और नो? यस और नो? समझा? स्क्वायर रूट ऑफ 41.28 सिंपली अभी तो मैंने फाइंड किया था लोअर अपर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 मतलब 64. स्क्वायर रूट ऑफ 4128 is 64. समझा? यस.
आदित्य कोई भी एक नंबर बोलो। आदित्य पाटिल, से एनी नंबर। 93. 93। स्क्वायर रूट ऑफ 93, ये तो बहुत इजी बोल दिया आपने। मुझे इसके नीचे किसका स्क्वायर रूट मालूम है? 81 है ना? 81 का स्क्वायर रूट है नो। एंड ऊपर मेरे को किसका मालूम है? 100 का मालूम है। करेक्ट। 81 का स्क्वायर रूट इज 9, 100 का स्क्वायर रूट इज 10। यस और नो? देखो कितना दूर है। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। नहीं, इसके ऊपर भी मेरे को किसी का स्क्वायर रूट मालूम है क्या? नहीं ना, इतना ही रेंज में है ना हम लोग, ठीक है। हाँ, 82, 83, 84, 85, 9, 10, 11, 12, 12 है, 12 की दूरी पे। इधर कितनी दूरी पे है? 7 की दूरी पे है ना? इधर से 7 की दूरी पे, इधर से 12 की दूरी पे, मतलब इसके ज्यादा पास है, मोर इंक्लाइन टू। अगर एग्जैक्ट सेंटर में आता तो मैं आंसर क्या लिखता? 9.5। 9.5. अगर एग्जैक्ट सेंटर में आता तो मैं आंसर 9.5 लिख देता ना, लेकिन ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। सो आंसर विल बी समवेयर अराउंड 9.7। हाँ. आ गया स्क्वायर रूट? समझा? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हनी विल टेल अ वैल्यू। 1609. 1609। फाइन, ये तो बहुत इजी वैल्यू बोल दिया। आई नो आई एम गोइंग टू शिफ्ट 16.09 into 10 to the power 2। 10 to the power 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा, 10 to the power 1 बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16.09, अरे 16 का पता है 4.09 है ना, 4.1 into 10 to the power 1 मतलब 41 आया। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझा इतना? ठीक है, तो ये टेक्निक बताने का यही 09 मेरा। को 1 से लिया। 09 मतलब 16.1 ना, 16 का 4 है, तो 16.1 का भी 4 लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4.1 ले लिया मैंने, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। समझा 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 एवरीवन? इसको अप्रोक्सीमेट डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू से करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 3.09 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से 3.1 आएगा। ठीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या 3.09 या 3.1? नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब एंट्रेंस में हम लोग जाते हैं ना, हमारे पास जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे से ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। मतलब अगर एक ऑप्शन है 41, दूसरा है 63, तीसरा है 91, चौथा है 4। तो अगर अप्रोक्सीमेशन में आपका पॉइंट ऊपर नीचे भी हुआ ना, तो भी आप आंसर में तो डिराइव हो ही जाओगे। समझा इतना? ठीक है, आप लोग जब एंट्रेंस में आओगे तब तो इतना देखोगे कि मैं तो पागल जैसे 99 को भी 100 लेके सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम देखेंगे जब हम लोग एंट्रेंस में जाएंगे। बट अभी आपके सम को सॉल्विंग के लिए मैंने स्क्वायर रूट का भी टेक्निक बता दिया। समझा? यस एवरीवन, शुड वी प्रोसीड? चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना टेक एज, चलो लिखो। शुड आई डिक्टेट इट और शुड आई राइट इट? डिक्टेट करूंगा चलेगा ना? थैंक यू यार, कितने अच्छे बच्चे हैं। चलो लिखो। अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। अरे शॉर्ट मैग्नेट बोला है मतलब डायरेक्ट वो फाइनल फॉर्मूला यूज करोगे, है ना? है ना? अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल हैज मैग्नेटिक मोमेंट, हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 ampere meter square, has magnetic moment 0.5 ampere meter square। सर हाँ बोलो। रिपीट कर बोलेंगे इससे ओके, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, अरे सुन सुन बोल रहा हूँ मैं। अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, calculate the magnetic induction, calculate the magnetic induction by it, calculate the magnetic induction by it at a distance,
at a distance 20 centimeter, at a distance 20 centimeter from the center of the magnetic dipole, from the center of the magnetic dipole. On the axis, on the axis, and on the equatorial line, and on the equatorial line. Okay, everyone. Now, let us write the given data. A short magnetic dipole has a magnetic moment chota m, 0.5 ampere meter square. Calculate the magnetic induction by it at a distance of 20 centimeter from the center. So distance, if it is given from the center, means distance is chota r. Yes or no? Correct. So distance is chota r. Don't write anything, just pay attention. Chota r का value दे दिया है. That is 20 centimeter. That is 20 into 10 to the power minus 2 meter. Your basic motive should be understanding, not the writing work. ठीक है? Writing तो बाद में हो जाएगा. So हम लोग बोलेंगे R का वैल्यू है 20 into 10 to the power minus 2 meter. कहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है? एक्सिस पे फाइंड करना है और इक्वेटर पे फाइंड करना है. मतलब वी आर टोल्ड टू फाइंड इट एट बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर. क्वेश्चन समझा सबको? यस. अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला है अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल. मतलब आई कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला बी एक्सिस is mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. Yes or no? Okay. B equator का डायरेक्ट फॉर्मूला B equator mu naught upon 4 pi into m upon r cube. Yes or no? ठीक है. But I'm not going to solve it like this. I'm smart. ऐसा मत देखो. Yes, I am. ठीक है. अभी देखो, हम लोग का बेसिक इक्वेशन हमने डिराइव किया था. That is B axis is equals to 2 times B equator. हाँ कि नहीं? B axis is 2 times B equator हमने प्रूफ किया था. तो दोनों इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन करने का, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने का जरूरत है क्या? नहीं ना. अगर मैं सिंपली B एक्सिस B इक्वेटर भी फाइंड कर लूं तो वो वाला आंसर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मैं B एक्सिस फाइंड कर सकता हूं? समझा इतना? So rather than taking a big calculation stuff, we are going to be smart. ओके तो चलो करो आप लोग जल्दी, मुझे आंसर बताओ.
किसी को आंसर आया तो बताना। इतना भी लेंदी नहीं है ये सब, कितना टाइम लगे। कोई बात नहीं, करो करो। सर बोलो। 625 into 10 raised to 6 है क्या इक्वेटर का? कितना? 625 इंटू 10⁻6 हाँ सर, +6 की -6? प्लस आपने 6 सबसे है। आपका है ना, आपने सबसे बड़ा मिस्टेक पावर्स और डेसिमल में किया है। आंसर आपका करेक्ट आया है, पावर्स और डेसिमल में आपने गड़बड़ किया है। चेक करो कहाँ पे सर क्या कन्वर्जन में गड़बड़ किया है। जीरो क्या पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू 10⁻5 0.625 इंटू 10⁻5? किसने बताया आंसर? प्रतीक ओके, यूनिट क्या आएगा बेटा? टेस्ला। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। सर 6.25 into 10⁻⁻6 भी हो सकता है ना? करेक्ट करेक्ट, 6.25 10⁻⁻6। दोनों का अलग अलग 0.625 डेवलपमेंट बना है कि? वही हुआ ना, 0.625 10⁻�5। ये इक्वेटोरियल होता है ना? हाँ, ये बी इक्वेटोरियल होगा। ये बी एक्सिस निकालने के लिए सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.25 into 10⁻⁻5 1.25 1.25 10⁻⁻6 टेस्ला। वेरी गुड। फाइनल स्टेटमेंट लिखो। बाकी बच्चे ये आंसर देखो आपको आया कि नहीं। बी इक्वेटर का 6.25 10⁻⁻6 टेस्ला, और एक्सिस का, बी एक्सिस का 12.5 10⁻⁻6 टेस्ला। Correct? Everyone with this answer? Yes, yes, yes. Yes sir. Everyone, pakka? कैलकुलेशन दिखा। Calculations, okay, fine. For B equator, right? It is mu naught upon 4 pi, that is 10⁻⁻7 into chota m is 0.5 upon r cube, that is 20 into 10⁻⁻2 cube. Correct? Right. Now, let us proceed with the calculation. 0.5 into 10⁻⁻7 upon 20 into 20 into 20, 10⁻⁻6. Correct? -6 will go up, it will become +6. -7 plus 6 will become -1. -7 plus 6 will become -1. So it will be, 1 second. 0.5 into 10⁻⁻1 upon 20 into 20 into 20. करेक्ट है ना? ये बच गया। अभी
0.5 का मैं एक डेसिमल निकाल देता हूँ, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻1 पहले ही था, इसका एक डेसिमल निकाला तो 10⁻⁻1, करेक्ट, वही बात हो गया एवरीवन। ये मिला 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10⁻3, यस और नो, plus 3 will go up, it will become -3. So -3 -4 -5, 5 by 8 into 10⁻⁻5. Numerator is small, I don't know how to solve it, make it big, 50/8 into 10⁻⁻6, समझा? एक जीरो ऐड किया तो उधर एक जीरो सबट्रैक्ट कर दिया, पावर में कॉम्पनसेट कर दिया। 50 divided by 8, 2 25 are 2 4s are 25 divided by 4, 25 divided by 4 will be 4 and 4 4 5 6 are 24, 1.042z to 6.25 आ गया, 6.25 10⁻⁻6 टेस्ला, यस or no? है ना? और बी एक्सिस सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कहां गया आंसर, अरे कहां गया, हाँ यही रहा, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर आ जाएगा, है ना? क्लियर एवरीवन, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। सबके पास टेक्स्ट बुक है, खरीदा है, वाह, कवर भी चढ़ा दिया, सबके पास है ना टेक्स्ट बुक, एवरीवन विद द टेक्स्ट बुक, वेरी गुड। कम टू पेज नंबर 228, 228 228 228, पेज नंबर 228, 228 में हम लोग आएंगे टू अवर क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में रोमन में क्वेश्चन नंबर 3, टू स्मॉल एंड सिमिलर, मिला एवरीवन? ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दोगे, वो आप घर पे लिख सकते हो क्वेश्चन, वाई टू वेस्ट टाइम, उसकी जगह हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे, है ना? सो क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ो, टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका टेक्स्ट बुक नहीं है? नो वन लाइक दैट, राइट? चलो गुड। Question is, two small and similar bar magnet has magnetic dipole moment of 1 ampere meter square each. They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of other magnet. If the distance between the center is 2 meter, find the magnitude of the magnetic field at the midpoint of the line joining the center. अरे बाप रे, ये छोड़ देने का ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, अभी समझो कैसे करना है, दिखता बड़ा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। द बेसिक थिंग इन फिजिक्स इज यू शुड नो हाउ टू रीड द क्वेश्चन। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, तो मतलब फिजिक्स में सब कुछ आ गया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है? अभी देखो, टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट, तो इतना तो मुझे पता चल गया, 2 बार मैग्नेट है, हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच, मतलब दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज छोटा m, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है? They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. मतलब दोनों को प्लेन में ऐसे रखा है ना कि दोनों मैग्नेट का एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब अगर एक एक्स एक्सिस पे जाएगा तो दूसरा वाई एक्सिस पे जाना चाहिए, इतना समझा? परपेंडिकुलर इसी को बोलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the other magnet. अभी इसको ऐसा परपेंडिकुलर रखा है कि एक मैग्नेट के लाइन, जो सेंटर से जो लाइन जा रहा है, a line drawn from the axis of one magnet passes through the center of other. एक मैग्नेट के एक्सिस से जो लाइन जा रहा है दूसरे मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है। तो इसमें से मैं कैसे आप फिगर बना सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि पहला मैग्नेट ऐसा, ये इसका एक्सिस, दूसरा मैग्नेट ऐसा, ये इसका एक्सिस, करेक्ट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। पहला मैग्नेट का एक्सिस जा रहा है दूसरे मैग्नेट के सेंटर से, है ना? सही कंडीशन लिया मैंने। आगे बोला है
if the distance between their centers is 2 मीटर. ओके चलो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है 2 मीटर. इसका सेंटर मैं O ले लिया, तो इसका सेंटर मैं O डैश ले लेता हूं. ठीक है, अभी दोनों के बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर. यस और नो? समझा मैं कैसे कंडीशन से डायग्राम बना रहा हूं? Find the magnitude of the magnetic field at the midpoint of the line joining their center. Very nice. हमको magnetic field निकालना है कहां पे? At the midpoint of the line joining their center. This is the line which is joining their center. I have to find magnetic field at the midpoint. At the midpoint, midpoint का मतलब मुझे इतना तो पता है center होता है ना? तो मुझे magnetic field find करना है at a midpoint that is P. अभी क्वेश्चन में ही बोल दिया it is a midpoint. If in the question they have specified it is a midpoint, means ये वाले इधर से इसका डिस्टेंस होगा 1 मीटर, ये वाले इधर से भी इसका डिस्टेंस होगा that is 1 मीटर. करेक्ट? क्योंकि टोटल 2 मीटर है, तो मिड पॉइंट तो यहां से 1 और वहां से 1 हुआ. ठीक है, इतना समझा मैंने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम कैसे बनाया? यस एवरीवन क्लियर विद दिस? अभी मैंने जैसे ही एक बार डायग्राम बना दिया है क्वेश्चन पढ़ के, नाउ व्हाट आई सी इज for this magnet, for the first magnet, and this is the second magnet. For the first magnet, point P is on its equator. For the first magnet, point P is on its equator. हाँ कि नहीं? Point P उसके इक्वेटर पे आ गया ना, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये उसका इक्वेटर हो गया. And for the second magnet, this is its axis. है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? अभी तो मतलब पहला मैग्नेट के लिए मैं इक्वेटर का फॉर्मूला यूज करूंगा, दूसरे मैग्नेट के लिए मैं एक्सिस का फॉर्मूला यूज करूंगा. यस और नो? हो ना? समझा ना? ठीक है, तो हम लोग Yes. बोलेंगे फॉर फर्स्ट मैग्नेट मैं फॉर्मूला यूज करूंगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब. ये इक्वेटर का फॉर्मूला. मैं बोलूंगा फॉर सेकेंड मैग्नेट B axis is equals to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. हाँ कि नहीं? करेक्ट. पहले का इक्वेटर, दूसरे का एक्सिस. अभी हमको निकालना है इसका रिजल्टेंट. अभी अगर हम लोग को इसका रिजल्टेंट निकालना है, we have to find the value of resultant. Then how exactly we are going to find the value of resultant? You have learned the second chapter. Don't write anything. Nigar, pay attention. Don't write anything. Just pay attention. If I want to find the resultant, तो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल मेथड में एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था रिजल्टेंट निकालने का, कि अगर हमको किसी भी चीज का रिजल्टेंट निकालना है तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट. तो P और Q के बीच का रिजल्टेंट निकालते थे, तो भी हमने ये वाला बेसिक फॉर्मूला यूज कर लिया. लेकिन अभी हम लोग को रिजल्टेंट किसका निकालना है? बी एक्सिस और बी इक्वेटर का. बी एक्सिस और बी इक्वेटर का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए भी मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. आई एम गोइंग टू से द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं बोलता हूं पहला कोई भी लोग फर्क नहीं पड़ता, बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस क्यू की जगह लिखता हूं बी इक्वेटर. एक मिनट. ओके हाँ, बी एक्सिस और इसकी जगह बी इक्वेटर प्लस 2 टाइम बी एक्सिस इंटू बी इक्वेटर इंटू कॉस. बी एक्सिस और बी इक्वेटर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं. कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0. करेक्ट. cos 90 is 0 एवरीवन. cos 90 is 0. cos 90 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. हाँ कि नहीं? पूरा टर्म 0 हो गया तो मेरे पास बचा b is equals to स्क्वायर रूट ऑफ b एक्सिस का स्क्वायर प्लस b इक्वेटर का स्क्वायर. इतना समझा सबको? प्लस 0 गया ना, तो पूरा वो हो गया. समझा कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? सेकेंड चैप्टर भी इसमें आ गया. ठीक है, अभी यहां तक आप लिखोगे, फिर मैं इरेज करके सॉल्व करूंगा. डायग्राम इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट.
बच्चों आप लोग वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो ना मैग्नेटिज्म का? वर्कशीट आपको जो दिया था सॉल्व कर रहे हो वो असाइनमेंट क्वेश्चंस व्यू से कर रहे हो ना? कुछ डाउट आया उसमें तो भी पूछ लो। आयु कोई बात नहीं आयुष, लेकिन ये नो किसके लिए बोला? कि सॉल्व नहीं कर रहे उसके लिए नो बोला कि डाउट नहीं आ रहा है उसके लिए नो बोला? सॉल्व नहीं किया इसलिए बोला। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव कलर पेन स्पार्कल पेन तो अलग अलग कलर से दो मैग्नेट बनाओ तो आपको पढ़ने में इजी होएगा। कलर स्पार्कल परफ्यूम सब मार दो उस पे। हो गया? नहीं हुआ? अच्छा करो। डन 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 डन। ओके अभी ये वाले सब में हम लोग को एक एडवांटेज है कि हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट इतना बड़ा नहीं चाहेगा। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला है दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, करेक्ट? एंड प्लस दोनों का भी आर का वैल्यू भी सेम हो गया, 1 और 1, करेक्ट? इसका आर भी 1 हो गया, इसका आर भी 1 हो गया, तो मैं दोनों को साथ में ही सॉल्व करूंगा। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग टुगेदर, अगर दोनों का कुछ भी एक वैल्यू अलग होता ना तो मैं अलग अलग सॉल्व करता, इधर डालता और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेता। लेकिन अभी दोनों का वैल्यू सेम है, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट टुगेदर। दैट इज b is equals to square root of, stop writing, just pay attention, that is mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube का square plus b equator is mu naught upon 4 pi into m upon r cube का square. From here you can take mu naught upon 4 pi m as well as r cube as constant या common, you can say common बाहर निकाल सकते हो क्योंकि दोनों का उसका m का और r का वैल्यू तो सेम है। So I can say square, ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर भी चला जाएगा। इतना समझा कि वो स्टेप मैं लिखूं नहीं ना, डायरेक्ट करूं मैं? सो इफ आई एम गोना से डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब आउटसाइड एज अ कांस्टेंट, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, सब तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, दैट इज 1 का स्क्वायर, करेक्ट? अभी मुझे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 to the power -7
m का वैल्यू क्वेश्चन में हमको बोला था 1, r का भी वैल्यू है 1, सो 1/1 क्यूब इनसाइड द स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास बचा 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, दैट इज √5 into 10 to the power -7 टेस्ला। समझा? मैच हुआ टेक्स्ट बुक के साथ एवरीवन? अभी है ना टेक्स्ट बुक में ये आंसर दे दिया था √5 into 10 to the power -7, इसलिए मैंने इधर ही छोड़ दिया। बट अगर मुझे आंसर नहीं पता होता ना तो मैं 5 का भी रूट फाइंड करता। समझ रहे हो? तो मैं 5 का भी रूट फाइंड करता। 5 का रूट बताओ क्या रहेगा? 2 point something, 2.2, 2.2, 2.1, 2.2, करेक्ट? वेरी नाइस। चलो लिख लो।